Perfect. Please solve the question then, Praneeth. Is this clear? Everyone else? You have to logically arrange them with respect in ascending order of total number of passengers, average number of passengers per airport. Come on, take this up. Come on, how would you solve this question? I'll give you 1 or 2 minutes to think, consider what the question is about, and then take it live. Which option? Let me know if you want to see the option once again. Or you guys have written the options which I showed you. You guys are able to solve this? Yes or no? Sir, we need values for solving that. Come again. The previous The question value you are we have saying, to go to the previous. of course. Yes, sir. Ideally, that is not required. If you try to solve the question logically, no, doing this much of the calculation, I mean, though you will write first of all to understand what is important, what is not important. So the first value is 212 into 135 divided by 480. This is for which country? This is for Australia, right? Next is for Austria. The value is 28,000 only, but you are multiplying by 126, but you are dividing with a very small value, which is 52. Next is Belgium. For Belgium, it is 35 only. You are multiplying by 93 and dividing by 41. And the last is Canada, which is 434,000 into 97 divided by 1467. Now just tell me with your observation. Now it's, as said, DI is about finding, having a correct observation skill set. Not mathematically soundness is required. Praneeth, Sanket, everyone, tell me which of the following would be the lowest of all. Which of the following is going to be the lowest of all? Which of the following is going to be the lowest of all? Smallest of all. 12 into 135 divided by, and this should be an observation skill, not by calculator. You will do by 480. 21 into 436 divided by 52. 35 into 93 divided by 41.
434 into 97 divided by 1467. Which of them is going to be the smallest? Come on, answer from all of you. It's okay to make mistakes, Sakshi, Yaksh, Prathamesh, but unless you guys don't say, you will not get to see. Okay, all of you are right, Bhushan and Yash. The answer is basically for Canada. So can I say if you arrange them in ascending order, Sakshi, can I say if you have to arrange them in ascending order, Canada will be the first country to be arranged? Do you think, Yash, Bhushan, if I arrange them in ascending order, Canada will be the first country to be arranged in the lowest rank? Yes or no? Yes or no? Okay. If yes, dude, see here among the option, there's only one option which is saying Canada is the lowest of all. So why would I even do it for other countries? If I have looked into the option really well, I'll go back and then so the idea is maximizing, minimizing, arranging them in ascending or descending order will be dependent on the option. So you first look at the question, look at the option, and then go to the caselet so that you get to see whether you're looking for the highest value or the lowest value. And then depending on the option, you will logically sequence them. Is this clear to all of you? Yes or no? Is this clear? So not whole calculation was required, only for the lowest value we were looking for. Perfect. Can you solve the second question on your own now? You are reading the second question. Tell me whether you guys will be able to solve the second question on your own. Yes or no? It says which of the following is a combination of uh, country and the period which exhibited a maximum percentage increase in number of passenger. Number of passenger is average number of passenger into number of flights, right? So the second table into first table you will multiply to get the value. Total number of passenger is number of passenger per flight into total number of flight. Now the question is between Canada 95 and 2000. I'll write down the value and you will do it. The first is Canada between 95 to 2000. Next is Austria 90 to 5. Next is Belgium 2000 to 2005. And next is Australia. Australia is for which year? 95 to 2000. Can you solve this question for me? All of you, please try this once. So you are multiplying what? The respective year, the name of the country, you are multiplying what? You are multiplying these two values. So for example, if you will ask me, do one case for me, let's say I'll do it for Canada. For Canada, in a very humble way, what I'll do is 95 to 2000 is the value that I'm looking at. So it's going to be 341 multiplied by the value of Canada in 1995 is 58. This value is becoming what? 363 multiplied by 86. Now, as said, you will not multiply and then find a percentage increase. Can we use successive percentage change here? Yes or no? Can we use successive percentage change here? Yes or no? So everyone out here, I would want all of you to participate only, then you'll be able to learn better. 341 is becoming 363, 58 is becoming 86. Both the values are increasing, so we can still use percentage increase in successive form. So ideally, it's like 34 is becoming 36 and 58 is becoming 86. Find a percentage here, find a percentage here, and then use successive percentage change, which is A, B, and A percentage of B. Do it for Canada, Austria, then Belgium, and then Australia, all four of them. And then tell me which of them is highest. Can we do this? All of you? Is this understood? The application of successive changes is understood? Paneet, Sanket, everyone?
Come on, if yes, then please solve the question. Thirty-four is becoming 36, so it's 2 upon 17. 1 by 17 is 5.8, so this is going to be double of 5 by 8. Next, 58 to 86. You have to find a percentage increase and then you use successive changes. So as said, if the number of digits, I repeat, what you can do is, if the number of digits is same, you can focus only on the first digit only. Like in this question, we had 341,800 to 363,468. But we are not solving the whole sum. We are solving only 34 to 36 because the number of digits was same. So I remove the decimal value from the given case to 34.1 and 36.3. Like this you would have to solve. On, go ahead. And I would want answers from all of you only this time. Come on, Bhushan, Praneet, Sanket, everyone. You guys are able to solve this? Bhushan, Praneet, everyone. You guys are able to solve this? Bhushan, it's taking time. So ideally, as said, the question is not to find the exact value. The question is about the maximizing one, which is the maximum of all. So even the approximate answer would be okay, nothing to worry about. Even if you find out the approximate answer, it's still okay. Which of the following do you think? So one, changes in the above table should be maximum and changes in this bar should be maximum. इतना ही देखना है आपको. And then logically बताओ कहाँ पे ज्यादा आएगा. जहाँ पे दोनों ज्यादा है वही वैल्यू ज्यादा होगी. उसी का सक्सेसिव ज्यादा होगा जहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा है, राइट? कनाडा का निकाला कि नहीं निकाला ये बताओ. आप लोगों ने कनाडा का निकाला कि नहीं निकाला?
कनाडा का एक पार्ट तो हम निकाल चुके हैं, इट्स 5/8 into 2। दूसरा है 58 is becoming 86। क्या है कनाडा का? Lord. Prathamesh, Yash, everyone. Canada near about, you are considering it to be how much? 60%. If you got the same answer, okay. Now Canada तुम्हारे पास आ चुका है ना, Canada का 60, roughly it is 60। अब बाकियों का अप्रोक्सीमेट करते हो ना, जहां पे तुमको लग रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम उसी को देखेंगे, बाकी लोग को नहीं देखेंगे। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अपनी बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा। लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया। पहले देखो कौन कौन से केसेस में दोनों इंक्रीज हो रहा है और किसी में एक डिक्रीज हो रहा है, तो उसको वही निकाल देंगे। ऑस्ट्रेलिया 95 से 2000। ऑस्ट्रेलिया इज 95 से 2000। ऑस्ट्रेलिया 95 इज 136 से 126। ये तो दिख रहा है दोस्त, ये तो वैल्यू कम होते जा रही है, ये तो रिड्यूस हो रही है ना। तो ऑस्ट्रेलिया को तो सबसे लास्ट में पकड़ोगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो 95 19 से 21 तक जा रही है, 2/19 से इंक्रीज हो रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया तो कभी नहीं होगा। ये देख के समझ में आया कि नहीं हुआ? सक्सेसिव में दोनों पॉजिटिव है तो ज्यादा चेंज होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कम ही होने वाला है ना। वैसे ही बेल्जियम देखो, बेल्जियम हो रहा है तुम्हारा कब से कब तक चाहिए? 2000 से 2005। 27 इज बिकमिंग 31। सो वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई? 32। 32 पकड़ो उसको। 5/27 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ 2000 से 2005। अब नीचे वाले टेबल पे देखते हैं, नीचे वाले टेबल पे 2000 से 2005 बेल्जियम देख रहे हैं हम लोग, व्हिच इज थर्ड। 98 इज बिकमिंग 96। ये वाली भी कम होते जा रही है, तो बेल्जियम भी नहीं होगा। हट गया ना, तो दो तो मेरे को करना ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया करके बताओ। 90 से 95। 17 इज बिकमिंग 19। कम ऑन, क्या इश्यू आ रहा है तुम लोग को? और उसके बाद ये 90 से 95 यहाँ पे देखो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड रीजन। 121 इज बिकमिंग 136। सो 12.1 इज बिकमिंग 13.6 और 12 इज बिकमिंग 13.5। ये करके देखो बस, ये 2/17 हो रहा है। देखो यहाँ भी 2/17 था और कनाडा में भी एक 2/17 था, तो ये तो पार्ट कॉमन है। सिर्फ इतना पार्ट करके देखो कितना हो रहा है, 1.5/12 ज्यादा हो रहा है। कितनी आएगी वैल्यू? 1/12 की वैल्यू कितनी है? 1/12 is half of 1/6। 1/6 is 16.66। So it's 8.33 into 1.5। ये वैल्यू निकाल दो आप, 8.33 into 1.5। कम ऑन, कितनी आएगी वैल्यू? अब मेरे को बताओ अब कौन सा हाईएस्ट है, कनाडा है या तुम्हारा ऑस्ट्रिया है? बाकी दो केस तो हम निकाल चुके हैं। ये बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया तो कभी नहीं आएगा। Which is the highest of all? What is going to be the highest of all? Everyone? यश, प्रथमेश, संकेत, प्रणीत, भूषण। सिंपल। अब समझ में आया ना कैसे करना चाहिए तुम लोग को? आइडली अब एप्लीकेशंस पता है तो तुम क्यों उसमें हर एक में माथामारी करोगे, हर एक निकालो फिर कंपेयर करो। कंपेयर क्या करना है, देन कैसे करना है। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट देन द मैनुअल एफर्ट्स। इज दिस क्लियर? एवरीवन, इज दिस क्लियर? तो इतना टाइम मत लगाओ यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, इतने बड़े नहीं है कि तुमको इतना टाइम लगेगा, ये मत करो अभी। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। I would want all of you to think through the question. These are challenger level question and this is the level of question that may come up in the paper. में क्या आएगा ये ऐसे लेवल पे?
बट तुम अपना लॉजिकल मैथमेटिक्स इज स्किल, आप उसको अप्लाई कब और कैसे कहाँ करना है, ये तो तुमको प्रैक्टिस से ही आएगा ना, नहीं करोगे तो प्रैक्टिस तब कैसे बन पाएगी अपनी बात। All right, let's read the question. Let me make the entire screen visible. Cricket team played 3 matches. In each match, team faced certain number of balls. The runs scored of each ball being used in ones, twos, threes, fours, or six. However, it is possible that the team scored no runs. However, it is possible that the team scored no runs of the balls that he faced. मतलब हर एक बॉल में कुछ ना कुछ रन बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉल हैं जहां पे उसने रन नहीं बनाए हुए हैं. There are pie charts of match 1, match 2 and match 3. The pie chart given above shows the percentage distribution. Shows the percentage distribution of total number of runs scored by the team in all the 3 matches. Individual matches के total runs बताए हुए हैं. The total number of runs scored by the team in each of the 3 given matches are not known to you. The total number of runs is not known to you, but the range of score is known to you, which means पहले मैच का जो रन है वो 0 से 180 के बीच में है, कुछ भी हो सकता है. सेकंड जो है 0 से 320 के बीच में है, और तीसरा जो है 100 से 500 के बीच में है. Is the data clear to all of you? Is the data clear to all of you? Now, first question. An over comprises of 6 balls. An over comprises of 6 balls. What is the number of overs faced by team in match 1? An over comprises of 6 balls. What is the total number of overs faced by team in match 1? कैसे करेंगे इसको? ये बोलता है देखो, नंबर ऑफ ओवर्स निकालने के लिए तुमको नंबर ऑफ बॉल्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ रन्स निकालने पड़ेंगे. पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ रन्स निकालो, बट नंबर ऑफ रन्स निकालने के बाद क्या होगा, तुमको क्लियरली बोला हुआ है कि नंबर ऑफ रन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स. वाई? क्योंकि मैं नंबर ऑफ रन्स तो मैं निकाल दूंगा. जैसे 4 रन मारा, एक चौका मारा, तो एक ही बॉल खेला लेकिन रन 4 मिले. 6 मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, ऐसे नंबर ऑफ रन्स अगर मेरे को पता है, टोटल नंबर ऑफ रन पता है, अगर इफ आई नो टोटल नंबर ऑफ रन, सो मैं नंबर ऑफ बॉल्स निकाल दूंगा विच इज बीइंग प्लेड ऑफ, जिसमें से रन निकले. लेकिन कुछ ऐसे भी बॉल्स थे जहां पे उसने रन नहीं बनाए हुए हैं. इट हैज बीन सेड इन द क्वेश्चन there are certain number of balls on which no runs have been made. So what is the answer for the given question? What is the answer for the number? I think the answer would be cannot be determined. क्यों? क्योंकि अगर मान लो टोटल रन्स तुमने किसी तरीके से निकाल भी लिया, पहली बात तो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया कि नंबर ऑफ रन्स निकालो. बट अगर मैंने पूरे रन्स निकाले हुए हैं, अगर सारे रन्स निकाल लिए, मान लो पहले मैच में 50 रन मारे हैं, 50 में से 4 कितना, 2 कितना, 1 कितना, 3 कितना, 6 कितना निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी मैंने निकाल लिया. बट इस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ओवर्स? नो, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से तो वो निकले जो उसमें रन निकाले हुए हैं. इसमें कुछ और भी बॉल्स हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ बॉल्स या कुछ और बॉल्स जिसपे रन नहीं निकले हुए हैं. नहीं निकला प्लस रन निकला इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, and that should be divided by 6 to get the number of overs. So what do you think the answer for the given question is? What do you think the answer for the given question is? Sanket, Bhushan, everyone. Praneet, the answer would be cannot be determined. But तुम ये मत समझो कि मेरे को runs नहीं पता. If all of you are thinking I do not know the number of runs, so the answer is cannot be determined, all of you are wrong then. There's still a way in which you can find out the total number of runs in each of the 3 matches and then take it ahead. It is just that कुछ balls ऐसे भी थे जहां पे runs नहीं मारे हुए हैं, वो कितने अपने को नहीं पता, इसलिए the answer is cannot be determined. Is this clear? Because अब जो question आपको देने वाला हूँ इसमें तुमको निकालना पड़ेगा runs कितने हैं. Okay. Read question number 2.
If for all the matches, अब यहाँ पे दिया हुआ है, if for all the matches the number of balls of which no runs were scored. If for all the matches the number of balls of which no runs were scored is 10% of total number of balls, is 10% of total number of balls which of which runs were scored, of which runs were scored. Then the total number of balls faced, then the total number of balls faced was least for which match? क्वेश्चन समझा आप लोगों को? क्वेश्चन समझा कि नहीं पहले ये बताओ. पहली बात तो ये जो टोटल नंबर ऑफ रन्स निकलेगा, पहले यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रन्स. टोटल नंबर ऑफ रन्स से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच रन्स हैव बीन मेड, वो निकला. फिर एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 10% मोर देन नंबर ऑफ बॉल्स व्हिच यू हैव फाउंड आउट. दिस इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इन द मैच. उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो मेरे को निकालना है. What is the prerequisite? Now मेरे को बताओ prerequisite क्या है. If I and you will do this question. At least मैच नंबर 1 का तो आप ही करोगे. मैच नंबर 1 का आप करोगे, मैच 2 में से या 3 में से कोई एक मैं करके दूंगा. पहला स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ balls, sorry, find the number of runs in each match. The first thing that you have to do is find the number of runs in each match. Number of runs जो है मैच 1 में वो कितना है? 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है. So would you say कि यार मेरे को 180 वैल्यू देखनी पड़ेगी? आंसर would be no. क्यों? कि मान लो टोटल नंबर ऑफ रन्स अगर t है, अगर टोटल नंबर ऑफ रन्स t है, सो ये बोलता है 6% ऑफ t will be a multiple of 6, क्योंकि जो है ये है 6% of 6 is 6x. जो भी टोटल आएगा 6%, वो 6 का मल्टीपल होगा, वो 6 का मल्टीपल होगा. सिमिलरली 12% of this total will be 4x, 4 का मल्टीपल. 30% of this total will be 3 का मल्टीपल, and then 20% of total will be 2 का मल्टीपल. ऐसे आपको जाना है, ऐसे आपको 32% of total is 1 का मल्टीपल. समझ में आया? तो मेरे को बताओ इस रेंज में प्रथमेश एवरीवन, अब मेरे को बताओ इस रेंज में ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 0 से 180 के बीच में ऐसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जिसका 6% इज मल्टीपल ऑफ 6? %12 is multiple of 4. Come on, solve this now. ये तुम करके बताओगे मुझे कौन सी वैल्यू आ रही है तुम्हारे को. Come on, answer from all of you now. Yash is saying 180 is also possible. 160 is also possible. 120 भी possible है और 100 भी possible है. 4 वैल्यूज तुम बोल रहे हो. I don't think so 4 वैल्यूज possible होंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बात सुन भी लूं अगर और बोल दूं 180 का 30% कितना होगा तुम्हारा? सो तुमको ये देखना है कि जो इसका 6% है, जो इसका 6% है यश, ये 6x का मल्टीपल होना चाहिए. जो इसका 12% आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा? 4x का मल्टीपल आएगा. 12% कितना है? 10% is 18. 1% is 1.8. डबल इज 3.6. ये तो तुम्हारा डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो कहां से पॉसिबल होगा यश? लॉजिक यही पकड़ो ना. 6% of total is 6x का मल्टीपल. 12% is 4x का मल्टीपल. 30% is 3x का मल्टीपल. इस 3x का मल्टीपल, इसी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, सो 30% जो है वो 6x का भी मल्टीपल होना चाहिए और 30% जो आएगा वो 3x का भी मल्टीपल होना चाहिए. और यहाँ पे 6% जो है वो 12 का मल्टीपल है
6 का मल्टीपल है और 12% जो है वो तुम्हारा 4x का मल्टीपल है. No, you cannot assume the number of balls, Prathamesh. You have to first find out the number of runs. On the basis of number of runs, only then you will be able to find the total number of balls. Yeah. The first step is find the total number of runs. Your first step is find the total number of runs. There's only one value which can fit in for the given range, and that value is 100. 100 का 6% जो है वो 6 का मल्टीपल है. 12% जो है वो होगा 12. 12 is divisible by 4. 30% is 30 divisible by 3. 20% is 20 which is divisible by 2. So the number of runs which one of you have told me right as the answer for is how much? मैच नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ रन कितना है? 100. ये रन निकला. अब रन से हमको क्या करना है? हमको बॉल्स निकालने हैं. कितने क्या क्या है? कैसे निकलेगा आप देखो. इसका 6% कितना होगा? 6. रन 6. सो कितने बॉल्स खेले होंगे उसने? बताओ कितने बॉल्स खेले होंगे? एक बॉल खेला होगा तो एक ही में छक्का मारा होगा ना. नेक्स्ट 12% इज 12 रन. ये 12 रन उसने 4 से बनाए हुए हैं. तो नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड वुड बी 3. नेक्स्ट 30% is 30. ये 3x है. So the number of balls will be 10. Next 20% is 2x. So number of balls would be how much? 10. Next 32% is 1x. The number of balls will be 32. Is ये समझ में आया? So the number of balls is how much? 32 plus 10 plus 10 plus 3 plus 1. 42, 52. 52 plus 4 is 56. Oh God. So the run जो थे वो थे 100 और balls कितने थे? 56. समझ में आया सबको? Every one of you understood? अब ऐसे ही तुमको मैच 2 और मैच 3 के लिए निकालना है. ऐसे ही तुमको मैच 2 एंड मैच 3 के लिए निकालना है. Come on, take a lead and solve this question. मैच 2 और 3 बताओ. बॉल 56, इसका है रन 100. मैच 2 जो है 0 से 320 के बीच में है. बट 10% ऑफ टोटल इज 6x. 5% इज 4x. ऐसे कर करके बताओ कौन सी वैल्यू पॉसिबल है. उस वैल्यू जो पॉसिबल होगी उससे तुम क्या करोगे? उससे नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे हम लोग. क्लियर है? कम ऑन, सॉल्व दिस फॉर मी. मैच 2 के लिए बताओ. पहले मैच 2 करो उसके बाद आगे. Come on, solve this question quickly.
मैच नंबर 2 का हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन, मैच नंबर 2 तुमको निकालना है. You got the answer right, Sanket. It's going to be 240. It is going to be 240 only. 240 is the total number of runs. अब टू कैसे तुमको पता है 10% जो है टोटल का वो 6x होना चाहिए, 5% जो है 4x होना चाहिए. अब 5% अगर 4x होना चाहिए, सिमिलरली वैसे ही अगर 10% भी तुम्हारा 4x होगा, अगर 10 4x है तभी 5 भी 4x ही होगा. सो मतलब जो एलसीएम होगा 6 और 4 का होगा. वैल्यूज को देखते हुए शायद 120 ले सकता हूँ या 240 ले सकता हूँ, बट 120 लूंगा तो आंसर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? 120 का 5% is how much? Only 6. Is 6 divisible by 4? It is not. So you will consider only 240. अब 240 के साथ नंबर ऑफ बॉल्स निकाल के बताओ. कम ऑन ऑल ऑफ यू. 240 के साथ नंबर ऑफ बॉल्स निकाल के बताओ. कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ 6, 4, 3, 2, 1, फिर उसके हिसाब से नंबर ऑफ बॉल्स निकालो. क्विकली ऑल ऑफ यू. प्रथमेश, संकेत, भूषण, प्रणीत, सबको समझा कि नहीं समझा? All of you understood this or no? नंबर ऑफ बॉल्स बताओ यार फटाफट. Number of balls for the mesh is saying 139. What about others? Quickly, come on. ये समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मेरे को बता दो. I will do it for you. All of you are able to understand? All of you are able to do it? Yes or no? Sanket, answer is 139. All of you, perfect. सबका आंसर सही है. The answer is 139. पहले वाले का है 56, अगले वाले का है 139. बट क्या गेम खत्म हुआ? नहीं दोस्त, अभी तो हमने 2 ही किया. अब तीसरा वाला बाकी है. अब ऐसे ही थर्ड वाला बाकी है. थर्ड वाले के लिए 5% ऑफ टोटल जो है वो 6x का मल्टीपल होना चाहिए. 25% ऑफ टोटल जो है 4x का मल्टीपल होना चाहिए. 20% ऑफ टोटल जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. कम ऑन, तो अब बताओ भाई. ऐसे ही 10% एंड 40%, 2x 1x, कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी बताओ. यश इज सेइंग इट्स 480. अदर्स? अगर मैं यहाँ पे देखूं सेम जैसे हमने पहले किया था, 5x जो है वो 5 का 5% है. 25 है तो 6 से भी है 4 से भी है. 6 और 4 का एलसीएम आता है कितना? 120. 120 तो नहीं आएगा तो डबल उसका 240 हमने पकड़ा था. बट यहाँ पे जो रेंज है वो 500 तक का है. सो अगर यश 480 हो रहा है तो आई थिंक 240 भी होना चाहिए. चेक फॉर इट वंस अगेन. आई एम सेइंग दोनों होना चाहिए. 480 भी हो सकता है या 240 भी हो सकता है. यू कैन जस्ट से हाँ ना यस नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दिस इज माई T3 एंड दिस कुड ऑल्सो बी माई T3. इसके हिसाब से 6x 4x 3x 2x 1x निकाला. यहाँ से भी 6x 4x 3x 2x 1x निकाला. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाला.
हाँ ना, हो रहा है ना। तो अब एक काम करो, तुम 240 के साथ नंबर ऑफ बॉल्स निकालो, 240 का जो भी नंबर ऑफ बॉल्स होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 480 के लिए आ जाएगा। करो तो, डू इट फर्स्ट, फाइंड फॉर बोथ, फाइंड फॉर 240 एंड 480 आल्सो। सम ऑफ यू विल थिंक कि यार 480 में मैक्सिमम आया तो ये तो 139 में आया था यहाँ पे, बट यहाँ तो दो रेंज है। लेकिन अगर 240 में ही, द लोअर रेंज में ही अगर 139 के ऊपर आ गया तो मैच 3 होगा, और अगर 240 में मैच 2 के नीचे आया और 480 में मैच 2 के ऊपर आया तो आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया यश? सॉल्व द नंबर ऑफ बॉल्स फॉर बी फॉर 240 एंड 480 बोथ। कम ऑन, पहले इतना करो। सॉल्व दिस, 240 के लिए करो एंड देन 480 के लिए भी करो। Solve for 240 and 480 both. How many balls did you get for 240 and then 480 runs? दोनों का बताओ। आगे आंसर, ये 141 है कि 143 है, क्या है तुम्हारे पास, क्या है आंसर? 240 का 10% कितना हो जाएगा? 24. 5% will be 12. 15% will be 24 plus 12, 36. 40% will be 24 to 4, 96. And 30% will be 24 3 72. क्या आया तुमको? 141 आया है कि 143 आया? दोनों नहीं आ सकता ना। You're getting it to be 143. The answer should be 143. यहाँ पे 143 है तो यहाँ पे 286, ये तो बड़ा है, इसको तो हटा दो। बट आई एम सेइंग प्रथमेश, भूषण, एवरीवन, यहाँ पे 139 आया 240 के साथ। यहाँ पे अगर मैं 250 240 लोअर रेंज भी पकड़ूं तो भी 139 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, विच इज 143। सो मेरे को बताओ क्या होगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स और बॉल्स टू बी प्लेड? अच्छा लोएस्ट पूछो, फाइंड द लोएस्ट। तो लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट कौन सा होगा? लोएस्ट इज मैच नंबर 1। और देखो अगर तुमने केस निकाल दिया ना तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय मैच 2 इन मैच 2? 240। मैच 1, मैच 1 कितना आया था? मैच 1 100। मैच 3 कितना आया? 240 480।
देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, एंड टेक्निकली पिछले 5-6 साल से जो पूरा एनवायरमेंट है एग्जाम का वो चेंज हो गया. दे डू नॉट गिव यू कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन जिसमें बहुत टाइम जाएगा, माथा मारी होगी, ऐसी चीजें नहीं देते हैं. ये तुमको सिंपल क्वेश्चन सिंपल है, उसमें डेटा मिसिंग होता है. तो पहले तुमको डेटा रिफिल करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ही तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जिसमें तुम्हारा लॉजिकल आईक्यू अच्छा होना चाहिए. बस क्लियर है, समझ में आया सबको? सॉल्व किया तुम लोगों ने? टाइम लगा, बट विथ प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस यू हैव टू बी मोर एफिशिएंट. You guys are good to go? Hello then. अच्छा, ये क्वेश्चन ले लो अब. Dhanashri is also here. Dhanashri, welcome. And cool, I would want all of you to solve the question on your own. This is not going to be a that difficult question. करो ये क्वेश्चन, चलो. जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे आप इसको करो. You guys are able to see the question? पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बताता हूँ. The question says a multiplex theater has 3 screens. A multiplex theater has 3 screens, screen 1, 2, and 3. 4 different movies, which is A, B, C, D. I repeat, 4 different movies, which is A, B, C, D, on a particular day, was shown on more than one of the 3 screens. वो एक पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है और तीनों पे भी हो सकता है. On each screen, the first movie started at 10 a.m. पहली मूवी जो है 10 बजे चालू हुई. जो भी मूवी हो, पहली किसी स्क्रीन 3 है और मूवी 4 है, ये कॉम्बिनेशन है. Each screen there was a 15 minutes gap. On each screen there's a 15 minutes gap between the end of a show and the beginning of the next show. The between the end of the show and beginning of the next show. तो 15 मिनट का गैप तो मेरे को बफर ऐसे ही रखना है, क्लीनिंग के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, जो भी बोलना है बोल दो. Table 1 shows the times. Table 1 shows the times at which each of the movie started and their duration. Like movie A is for 135 minutes. वो movie 2 is for B is for 105 minutes. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 बजे शो चालू हुआ, 12 12:30 हुआ, 1 बजे हुआ, 3 बजे हुआ. स्क्रीन 1 पे, ये स्क्रीन 1, 2 एंड 3 किसी पे भी हो सकता है. वैसे ही BCD जो है ये भी किसी पे भी हो सकता है. Table 2 shows the number of times each movie was screened into 1 and screen 1 and 2. Like मूवी A जिसके कितने शो हैं, 1, 2, 3, 4, 4 शो हैं, उसमें से 3 निकला है स्क्रीन 1 पे, 0 निकला स्क्रीन 2 पे. मूवी बी के भी 4 शो हैं, 3 उसमें 1 निकला है स्क्रीन 1 पे और 2 निकला है स्क्रीन 2 पे. मूवी 3 के भी, सी के भी 4 शोज हैं, 1 यहाँ निकला है 1 पे, 1 निकला है 2 पे, लेकिन मेरे पास स्क्रीन 3 भी है, मेरे पास 3 स्क्रीन है. और मूवी डी के 5 स्क्रीन है. इन 5 शो में से पहला शो, एक शो, पहला नहीं बोलूंगा, एक शो हुआ है 1 पे और 2 हुआ है किस पे, 2 पे. मैं तुमको 2 क्वेश्चन देता हूँ इसमें, ये दोनों क्वेश्चन तुमको लॉजिकली सॉल्व करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें. मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाना है ये. when did movie A when did movie A was shown on screen 3?
When was movie A was shown on screen 3? Our second question, when was the last movie on screen 1 end? When did the last movie end on screen 1? ये दोनों क्वेश्चन तुम कर रहे हो. स्क्रीन 3 है, मूवी 4 है, टेबल 2 स्क्रीन का दिया हुआ है, गैप 15 मिनट और मूवी के टाइम का गैप होना चाहिए. आप इसको लॉजिकली सीक्वेंस करके फटाफट करके बताओ. कम ऑन. नहीं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है. ये तो मैं बोल नहीं सकता कि डीआई का क्वेश्चन है. ये उसमें कैलकुलेशन दिया ही नहीं मैंने. लॉजिकली वैल्यूज को पुट करो, टेबल बनाओ, सिंक करो, मूवीज को स्क्रीन से मैप करो, एंड देन मूवी 1 2 ए बी सी डी को मुझे लॉजिकली अरेंज करना है स्क्रीन 1 2 एंड 3 के साथ. कम ऑन. If you want, take a minute more. But I'm expecting गलत तो गलत, लेकिन आंसर्स तुम्हारे साइड से आने चाहिए. दोनों क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पे पूरे दिख रहे हैं क्वेश्चन टेबल के साथ. Yash, the first answer is wrong. Bhushan, the second answer is right. Everyone, come on. Take a minute more and solve the question, please.
ये हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ? You guys are able to solve this or you're not able to solve this? Come on, what is the scene? चलो साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, पहली बात तो ये, मूवी जो ए है उसके 4 शो हैं, मूवी बी के भी 4 शो हैं, मूवी सी के भी 4 शो हैं और मूवी डी के 5 शो हैं। नंबर ऑफ शोज मेरे को पता है, स्क्रीन 1 पता है, 2 पता है, 3 हम खुद निकाल लेंगे। स्क्रीन 3 पे मूवी ए बी सी डी कितनी बार आई हुई है हम निकाल लेते हैं। स्क्रीन 3 पे मूवी ए के 4 हैं, 3 हो चुके हैं तो एक ही आएगा, एक ही शो आएगा स्क्रीन 3 पे। बी का 1 और 2 हो चुका है, 3 हो चुके हैं 4 में से तो 1 आएगा। सी का 1 1 हो चुका है 4 में से तो 2 आएगा। एंड डी का 1 + 2 3 हो चुका है 5 में से तो 2 आएगा। समझ में आया? All of you understood this? Yes or no? Now based on this, the second is, the first question is, when did movie A was shown on screen 3? When was movie A was shown on screen 3? Now A जो है पहला शो है वो 10 बजे का है। अब इसमें 135 मिनट्स का तो मूवी है और 15 मिनट का गैप देना है, सो मतलब 150 मिनट्स, 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स का गैप होना चाहिए। सो अगर 10 बजे पहला शो है, सो 2:30 बजे सेकंड शो में रख सकता हूँ स्क्रीन 1 पे ही। मेरे को स्क्रीन 3 पे 1 दिखाना है, 2 है ही नहीं। स्क्रीन 3 पे 1, स्क्रीन 1 पे 3 दिखाना है। इसमें पहला शो है 10 बजे का जो सेट हुआ, अगला है 2:30 बजे, 12:30 का, 2.5 घंटे बाद। अगला है 1 बजे का। अगर 2:30 बजे मूवी चालू हो रही है स्क्रीन 1 पे 12:30 बजे, तो 1 बजे वापस से शो नहीं चालू हो सकता, उसमें 2.5 आवर्स का गैप चाहिए। तो मतलब जो 1 बजे है यही स्क्रीन 3 पे है, और 2:30 के बाद 2.5 घंटे के बाद जितना गैप लेना ले लो, 3 बजे का जो शो है वो भी मैं स्क्रीन 3 पे दिखा सकता हूँ। सो स्क्रीन 3 पे 3 शो, स्क्रीन 1 पे 3 शो और स्क्रीन 1 पे 1 शो। और जो 1 शो है वो कौन सा है, कितने बजे का है? वो 1 PM का है। समझ में आया सबको? All of you understood this? Yes or no? Everyone, Dhanashri, Praneet, Sanket, everyone understood, right? अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। When was the last movie screened on screen 1? स्क्रीन 1 पे लास्ट मूवी कब आई थी? स्क्रीन 1 पे देखो, स्क्रीन 1 पे ए के 3 शो हैं, ये तो बात पक्की है। बी का 1 शो है, सी का 1 शो है, डी का 1 शो है। तो यहाँ पे मैं लॉजिकली लिख देता हूँ A B C D। ए का देखो, ये तो हमने निकाल चुके हैं, ए का 3 शो हमने अभी अभी निकाला, 10 बजे का शो, 12:30 का शो और 3 बजे का शो। 3 बजे का शो कितने बजे खत्म होगा बताओ? 3 बजे का मूवी ए का शो कितने बजे खत्म होगा? 3 से कब तक चलेगा? 135 मिनट्स का मूवी और 15 मिनट का गैप चाहिए, 2.5 घंटा ना, तो 5:30 बजे तक चलेगा। मतलब 5:30 बजे के बाद कभी भी मूवी बी जो है वो रिलीज हो सकती है। तो 5:30 का कोई शो है क्या? है। तो ये हम स्क्रीन 1 पे देख रहे हैं। ए का लास्ट शो खत्म हुआ 5:30, खत्म हुआ मतलब खत्म तो 15 मिनट पहले हो जाएगा, बफर देने के बाद 5:30 को मैं अगला शो चालू कर सकता हूँ बी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? फिर 5:30 चालू हो रहा है, 105 मिनट की मूवी है और 15 मिनट का गैप है, तो 120 मिनट, मतलब 5:30 से 7:30 के बीच में शो चल, 7:30 अगला शो आ सकता है। सी के पास कोई अगला शो है क्या 7:30 का? है मेरे पास, तो 7:30 इज द नेक्स्ट शो व्हिच आई कैन बिगिन। 7:30 का शो कितने बजे, कितने टाइम का है? 165 मिनट्स का है। 165 मिनट्स का शो, 15 मिनट का गैप, कितना हो गया? 180। 180 मतलब 3 घंटा। तो मतलब 7:30 चालू हुआ तो 10:30 बजे तक कोई शो नहीं आएगा। डी जो है वो 10:30 बजे ही चालू हो सकता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? 10:30 ही चालू हो सकता है। 10:30 है क्या? हाँ 10:30 है। लॉजिकली हमने ए को तो हमने निकाल चुका था, ए से बी, बी से सी, सी से डी। 10:30 से कहाँ तक जाएगा? 135 मिनट का शो, 15 मिनट बफर, नहीं 135 मिनट का शो और सो कितना हो जाएगा? 150, 135 प्लस 15 इज 150, मतलब वापस से कितना? 2.5 घंटा। वापस से कितना? 2.5 घंटा, 2.5। 2.5 हो तो कितना हो जाएगा ये? 10:30 से 2.5, 10:30 प्लस 30 इज 11, 11 प्लस 2 इज
130, बट शो 130 खत्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि शो जो है 150 में 15 मिनट का हमने ब्रीदिंग स्पेस भी रखा था सैनिटाइजेशन के लिए। आखिरी मूव के बाद तो कोई शो ही नहीं है, तो हम नहीं रखेंगे, तो 15 मिनट कम कर दो उसमें से। शो विल एंड ऑन 115. The show will, with the, yes, I'm sorry, you were right. The show will end on 115. 3 से 5:30, 2.5 घंटे का शो, 2.5 घंटे का गैप। फिर ये ए खत्म हुआ, 5:30 चालू हुआ, 105 और 15 दो 120, 2 घंटे हो गए, तो 7:30 बजे खत्म हुआ। 7:30 बजे चालू हुआ तो 165 + 15, 3 घंटा चाहिए इसको, तो 10:30 बजे चालू हो सकता है। 10:30 बजे चालू हुआ यहाँ पे, सो 135 मिनट्स का शो है। 120 मिनट्स + 15 मिनट्स। समझ में आए? कुछ गलती तो नहीं है? 135 है ना, 135, 135 minutes, 2 hours 15 minutes। 10:30 चालू हो रहा है, 10:30 से 12:30 तक चलेगा। 12:30 पर माय बैड, द आंसर शुड बी 12:45। ये समझ में आया कि 10:30 बजे लास्ट शो चालू हुआ, 10:30 के बाद 135 मिनट्स उनको रुकना है। 135 मिनट्स में पहले 2 घंटा मैंने निकाल दिया, तो कितना हुआ? 12:30, और उसके बाद आखिरी का 15 मिनट है 12:45। समझ में आया एवरीवन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, राइट? सो एज सेड, तुमको लॉजिकल डीआई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक है कैलकुलेशन वाला पार्ट, एक है लॉजिकल डीआई पार्ट। तो लॉजिकल डीआई पार्ट आजकल ज्यादा आता है एग्जाम में। सो लॉजिकल डीआई पहले सॉल्व करना, उसका कैलकुलेशन तो विद टाइम ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, बट डेली बेसिस पे कम से कम एक सेट तो डीआई का सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। जितने भी बिजी हो तुम लोग, दिन का एक सेट सॉल्व करने के लिए 15 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। 15 मिनट तो तुमने पास था ही जो तुम निकाल सकते हो उसके लिए। ठीक है, चलो, on this note, I'll take a leave from today's class. I'll see you next time on this upcoming weekend. In the meantime, please practice and revise all the content that we have done till now. Our time will also plan for keeping some more tests for you. Okay. Thank you then all of you. I'll take a leave this time and I'll see you next time. Thank you all of you.